हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ कंट्री और अ कल्चर दैट यू वांट टू नो मोर अबाउट। अंदर के बुलेट्स हैं विच इज द कंट्री और द कल्चर, वेयर इज इट, हाउ डू यू नो अबाउट इट एंड व्हाई डू यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। डिस्क्राइब अ कंट्री और अ कल्चर दैट यू वांट टू नो मोर अबाउट, यानी कोई ऐसी कंट्री या तो फिर कल्चर के बारे में बात कीजिए जिसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। विच कंट्री इज इट, या तो फिर विच कल्चर इज इट, यानी वो कंट्री कौन सी है या फिर वो कल्चर क्या है, उसका नाम बताना है आपको। वेयर इज इट, यहाँ पे आपको बोलना है कि ये कंट्री जोग्राफिकली किधर लोकेटेड है। एंड हाउ डू यू नो अबाउट इट, यानी आप इस कंट्री या कल्चर के बारे में कैसे जानते हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हैं। एंड वाई डू यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, ऐसा क्या है, ऐसी क्या वजह है जिससे आप इस कंट्री या कल्चर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। अब देखेंगे कि 1 मिनट के थिंकिंग और प्लानिंग टाइम में हम पेपर पे क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया है कि जिसके बारे में हम ज़्यादा जानना चाहते हैं वो कंट्री या कल्चर क्या है, तो हमें सबसे पहले उस कंट्री या कल्चर का नाम बताना है। सो हम लिखेंगे भूटान। अब ये कहाँ पर है, सो यू कैन राइट नेबरिंग कंट्री ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालय between India and China. How do you know about it? So you can just say geography class. And why do you want to know about it में आप लिख सकते हैं happiest country, welcoming culture and scenic beauty. वीडियो के एंड में मैंने इस क्यू कार्ड को लिख के हिंदी में समझाया है। चलिए अब एग्जाम में किस तरह से बोलना है उसी तरह से क्यू कार्ड को बोलेंगे। It is since my childhood that I have been wanting to visit and know more about the country and the culture of Bhutan. So it is Bhutan that I want to know more about. Bhutan is the neighboring country of India and it is located on the southern slopes of eastern Himalayas, and I believe it is landlocked between India and China. How I know about Bhutan? Of course, because it's a neighboring country of India, so I know it through my geography class. Why I want to know more about Bhutan is because, number one, for a long time I have known through many sources that Bhutan was the happiest country in the world. Of course, right now the happiest country is Denmark, but for a very long time Bhutan had that position of happiest country in the world. So I'm really curious in finding out about why people are happy, how are they happy, what is their lifestyle, their family dynamics, the culture in which they live, the professions that they have. So this really excites me and draws me close curiously to understand this particular place. Another reason why I want to know more about Bhutan is that it is a very welcoming place. There are a lot of tourist packages centered around Bhutan and many people want to visit Bhutan. So people say that this is because of the natural environment, the cultural values that every individual or the citizen holds, and also the good governance. So that's why I want to know more about the culture. Another reason, of course, is the jaw-dropping beauty, the scenic beauty of Bhutan. It is known as the land of Thunder Dragon, and it has hilly areas and it's a green place. It's an awesome place to visit and feel good about the environment around. One more reason why I feel curious to know about the culture and the country of Bhutan is that it has some very interesting facts, like they believe in no TV, no internet, no street lights and no tobacco. So of course the world is now influencing Bhutan and there is internet and there is street light, TV, but this is very strange that people want to live without certain basic amenities and still they are happier. So these are some of the reasons why I want to explore and know more about the country and the culture of Bhutan. अब जो क्यू कार्ड मैंने स्टूडेंट बन के बोला है उसे समझेंगे। It is since my childhood
that I have been wanting to know more about the country and the culture of Bhutan. बचपन से ही मुझे भूटान के कल्चर और कंट्री के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा थी. So it is Bhutan that I want to know more about. इसलिए भूटान ही वो जगह है जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ. Bhutan is the neighboring country of India and it is located on the southern slopes of eastern Himalayas. भूटान इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, यानी इंडिया के बाजू में ही है, और हिमालय जो ईस्ट साइड पे पड़ता है उसके साउथ के साइड में जो स्लोप है उस तरफ भूटान है. आई बिलीव इट इज़ लैंड लॉक्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. मेरा मानना है कि भूटान की जो ज़मीन है वो एग्जैक्टली इंडिया और चाइना के बीच में पड़ती है. हाउ आई नो अबाउट भूटान? ऑफ कोर्स it is the neighboring country of India and so I know about it through my geography class. मैं भूटान के बारे में कैसे जानता हूँ? क्योंकि वो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, इसलिए मेरे जोग्राफी क्लास में भी स्कूल में से मैं उसके बारे में जानता हूँ. Why I want to know more about Bhutan? It is because I have known through a number of sources that Bhutan was the happiest country in the world. Right now, the happiest country is Denmark, but for a very long time, Bhutan had that position of the happiest country in the world. मुझे भूटान के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा क्यों है? क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत सारे सोर्सेस से मैंने सुना है कि पूरे विश्व में अगर सबसे खुश कोई देश है तो वो भूटान है. हालांकि अभी हैप्पीएस्ट कंट्री जो पूरे विश्व में है वो डेनमार्क है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक भूटान हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की पोजीशन पे रह चुका है. सो आई एम रियली क्यूरियस इन फाइंडिंग आउट व्हाई पीपल आर हैप्पी. हाउ आर दे हैप्पी? व्हाट इज देयर लाइफ स्टाइल, देयर फैमिली डायनामिक्स, द कल्चर इन विच दे लिव, द प्रोफेशंस दैट दे हैव. इसलिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ ये फाइंड आउट करने के लिए कि लोग भूटान में क्यों खुश हैं और कैसे खुश रहते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, वो फैमिली में एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रहते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वो किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं. सो दिस रियली एक्साइट्स मी एंड ड्रॉज मी क्लोज टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्लेस. इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और इसलिए मैं ये जगह को जानने के लिए खींचा चला जाता हूँ. Another reason why I want to know more about Bhutan is that it is a very welcoming place. There are lots of tourist packages centered around Bhutan and many people want to visit this place. एक और वजह है कि मैं क्यों भूटान के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ और ये है कि भूटान बहुत वेलकमिंग प्लेस है, यानी वहाँ के जो लोग हैं वो सबको बहुत स्वागत करते हैं. जो भी टूरिस्ट, जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं वो हैप्पीली सबको वेलकम करते हैं. बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट पैकेजेस हैं जो हॉलीडे और वेकेशंस की टूरिस्ट पैकेजेस बेचने वाली कंपनियां हैं, वो भूटान के लिए बहुत सारे विविध प्रकार के टूरिस्ट पैकेजेस बेचती है और कई लोगों को भूटान विजिट करने जाने की इच्छा भी है. People say this is because of the natural environment, the cultural values that every individual and citizen holds and good governance. लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भूटान की तरफ आकर्षित होते हैं उसका कारण है वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट, लोगों की जो वैल्यूज़ है और वहाँ का जो गवर्नमेंट है. Another reason is the jaw-dropping scenic beauty of this place. Jaw-dropping यानी बहुत ही अद्भुत. It is known as the land of the thunder dragon. यानी भूटान जो है वो ऐसी जगह है पे जहाँ पे बादल गरजता है और राक्षसी स्वरूप से बादल गरजता है. And it has hilly areas. वहाँ पे पहाड़ी इलाका है. It is a green place. बहुत सारी हरियाली है. And an awesome place to visit and feel good about the environment. बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे हम पर्यावरण के बारे में मन में बहुत अच्छा फील कर सकते हैं. अब यहाँ पे जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है. प्रयत्न करना है कि आप ये सारे एडजेक्टिव्स का उपयोग करें जब आप भूटान का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. One more reason why I feel curious to know about this culture is that it has some very interesting facts, like they believe in no TV, no internet,
no street lights and no tobacco. एक और कारण है जिसकी वजह से मुझे बहुत उत्सुकता होती है ये कल्चर के बारे में ज़्यादा जानने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रसप्रद हकीकतें हैं, जैसे कि भूटान के लोग टीवी नहीं देखने में मानते हैं, इंटरनेट यूज़ नहीं करने में मानते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं चलाते और तम्बाकू का सेवन भी नहीं करते. Of course, the world is now influencing Bhutan and there is internet and street light and TV also. But this is very strange that people want to live without certain basic amenities and still feel happier. हालांकि दुनिया आजकल भूटान को बहुत प्रभावित कर रही है और आज के युग में भूटान में इंटरनेट भी है, स्ट्रीट लाइट भी है, लोग टीवी भी देखते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज यानी कि विचित्र बात है कि ज़्यादातर लोग जो बेसिक ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं उसके बिना भी खुश रह सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस why I want to explore and know more about the country and culture of Bhutan. इसलिए ये सारे कारणों की वजह से मैं भूटान की कंट्री और कल्चर के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ. क्यू कार्ड से जुड़े क्वेश्चंस, कमेंट्स और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. ऑल द बेस्ट.